Hello everyone, I am Radhika Agrawal, final year MBBS student. Today I'll be answering some of the academical and non-academical questions which you, that means a second year medico, would come across while entering this year. When I entered second year, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी मेरे नीट पीजी की. मुझे सबसे पहले क्वेश्चन यही आया, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी एंड हाउ. एंड मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द सेम क्वेश्चन. So, the answer for this question is yes. You have to start preparing it for now. थोड़ा लेकिन you have to start it. Little steps make the big difference. ये little steps क्या है? Little steps are those 3 subjects of second year. That means patho, pharmac and micro. सबसे पहले you should have the good hold of the second year subjects. Before running behind the clinical subjects of major years, you should complete the all 3 subjects. Second year के subjects complete करना ही अपने आप में बहुत बड़ी accomplishment है. How to read a subject, how to know it, how to get the basics, वो तो कोई भी बता देगा. But after reading those subjects, how to get the most out of those subjects is the key. अब मैं बताती हूँ कि second year subjects में थोड़ा major year subjects को कैसे पढ़ना है. Keep in touch with them. Keep in touch means आपका जो daily होना चाहिए तो उसमें second year subjects would hold the major part of it. Like second year subject आपने पढ़ा है, then जिस मंथ की मंथ वाइज और जैसे भी आप लोगों की पोस्टिंग स्केड्यूल्ड होती है फॉर सेकेंड ईयर, सपोज आपकी मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही है तो आफ्टर कमिंग होम जो उस टाइम का उस डे का केस है और वही पार्ट जो चल रहा है वहाँ पे क्लिनिक्स में, तो घर आने के बाद उसी के कुछ यूनिट्स मेडिसिन की पोस्टिंग है तो उसी के कुछ 1 या 2 यूनिट आप उस मंथ में कंप्लीट कर लो. ज़्यादा नहीं, 1 यूनिट कंप्लीट कर लो या हाफ यूनिट कंप्लीट कर लो उस मंथ में, बट डोंट लीव द सेकेंड ईयर सब्जेक्ट. अब पीजी की प्रिपरेशन तो चालू हो गई है एंड पोस्टिंग की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को समझ ही गई होगी. नाउ द क्वेश्चन कम्स, should I participate in cultural activities or it is just a waste of time? College fun, मस्ती, festivals. And मेरा personal opinion ये है that few hours of college fun and festival won't take away your PGC. You should definitely be the part. सिर्फ पार्टी नहीं, तुम पूरा दिल खोल के उस कॉलेज फेस्ट, पूरी मस्ती से पूरा अपना दिल खोल कर एंजॉय करना चाहिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, अपनी कॉलेज लाइफ. बिकॉज ये जो कॉलेज फेस्ट और फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे एक्ट एज अ ब्रीदर फॉर यू. इतना हेक्टिक हो जाता है ना अपना एग्जाम पीरियड और जो लाइफ होती है पोस्टिंग बहुत हेक्टिक हो जाता है. सो यू हैव टू हैव अ ब्रीदर फॉर इट. ये वही टाइम है एंड इट इज़ द मोमेंट जो वापस नहीं आने वाला, ये लौट के नहीं आएगा और सिर्फ रह जाएगी मेमोरी. और जिनको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट है, सब फेस्टिवल्स वेस्ट है और वो अकेले रूम में बैठे हैं, तो उनको जब भी यही लग रहा था कि काश मैं नीचे चला जाऊँ, क्या मैं नीचे चला जाता हूँ, ऐसे विंडो से झांक रहे हैं और उनको अभी भी ये लगता है कि काश मैं उस शोर का पार्ट हो पाता. सो बिफोर वी गो अहेड विद दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस अमेजिंग ऐप DigiNerve. This app is getting extremely popular among MBBS students as they offer top courses by India's top faculty. DigiNerve app is by JP Brothers, who are known for their textbooks that we study during MBBS. The most amazing thing about this app is it helps you to get your concepts cleared and prepare for NEET PG exams. The app provides CBME based comprehensive video lectures, tons of MCQs and notes by India's best selling authors of standard textbooks. And these authors are Dr. Apur Shastri, Professor Harsh Mohan, Dr. Shriram Bhatt, Dr. Archit Bulur, Professor Ramdas Nayak and many more. Now the most exciting thing, DigiNerve has launched 5 days free trial for all their basic sciences and clinical combo courses so that you can try all their courses. Try it, test it and get it. This is a limited period offer, so activate your free trial now. Also, you can use my coupon code to get attractive discount on all the undergrad courses. So try this amazing app out and I know that you will love this app. So back to the video. Hopping on to the next one, the question was, should I read Robbins for pathology? And I got the same question. The alternative of it was that will I be able to complete Robbins in one go or not? Robbins पढ़ना चाहिए, it's a good book, but
कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ डायग्राम्स के लिए। यू नो, सेकेंड ईयर को कट करके थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। सो रॉबिन्स बहुत बड़ी बुक है, बट इफ़ यू रीड इट डेली यू कैन कंप्लीट इट। लेकिन माई सेवियर वॉज हर्ष मोहन। मैंने कुछ टॉपिक्स रॉबिन से पढ़े थे, बट कुछ ही, एंड कुछ डायग्राम्स, बट हर्ष मोहन ने लिटरली सेव माई लाइफ। एंड सारा जितना भी टेक्स्ट है, डायग्राम्स है, ऑल आर सिंप्लीफाइड, सो सिंप्लीफाइड इन हर्ष मोहन, एंड आई पर्सनली लाइक दैट बुक वेरी मच। तो हर्ष मोहन वॉज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. Also, I want to add a point that it's not about the book and the material from which you are getting a subject. It's about liking the subject. If you like the process, you will definitely get the hang of it. Relationship in medical college. What's the scenario of it? Library? Yes. Library is a place where people meet, they study together, and they get into a relationship. So, it is completely up to you that you want to have a partner or not for completing your studies, for passing time, for outings, or passing the search of MBBS. You can have a relationship till you balance it with your career. MBBS में एंटर करते ही ऐसा लगता है ना यार, एक बंदा या बंदी तो पट ही जाएगी MBBS ख़त्म होते होते. But I would suggest that don't run behind relationship. Run behind your studies because my dear, MBBS is tough. So it's about आप कौन सा relationship बनाते हो. एक जो डिस्टर्ब करता है आपकी पढ़ाई को, आपके मूड को, एंड सेकेंड जिसमें you study together and build your studies. So next is, are postings important? Yes, they are. It's nothing like you have to go there, just see what doctor is doing and listen to him, write, and just come back home. No. It's nothing like that. It's not a passive work. It's totally an active work for you. How? Do you ever wonder why there are postings from second year only? I'll tell you. It's a reality check that you have to get acquainted with the clinical scenario. Like, go home and अपना एक्टिव वर्क चालू कर दो. कैसे? उस दिन का जो भी केस हुआ है, उस दिन की जो भी पोस्टिंग हुई है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट थेरी पढ़ो उसकी, जाके घर जाके स्टार्ट नो मोर अबाउट दैट केस. उस केस की अच्छे से घर जाके स्टडी करो एंड उस केस की थेरी पढ़ लो घर जाके. दैट्स योर एक्टिव वर्क. इट विल बी हेल्पफुल not only to understand the case better, but to contribute in PG preparations. Today's last question is about pharmacology. Yes, the new subject for all the medicos. Pharmacology, the subject of drugs. सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ड्रग्स के नाम कैसे याद करें. इतनी सारी जो टर्म्स है, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स है, न्यू टर्म्स है, डिफ़िकल्ट टर्म्स है, उसे कैसे याद रखें. सो ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ इसमें मेमोरी का नहीं है कि आपको ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए. फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के नाम याद रखने के पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. सिर्फ ड्रग्स के नाम याद रखना नहीं, सारी जितनी भी प्रोसेस है, जो ड्रग कौन से रिसेप्टर में काम करेगा, उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशन, उसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ड्रग्स के, और पूरा बेसिक्स है, वो सारा समझने वाला है. इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स. और बहुत ही उसमें एप्लीकेशन है. लाइक इट्स नॉट अबाउट ओनली मेमोरी. तो पहले अगर आपको वो समझ में आ जाता है ना, तो ड्रग्स के नाम तो ईजिली याद हो जाते हैं. पता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यू विल गेट अ नाइस होल्ड ऑफ द टर्म्स. आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी आई विल शेयर विथ यू सम ऑफ द पॉइंट्स, हाउ विल यू रिमेंबर एंड हाउ विल यू मेमोराइज द ड्रग्स नेम. तो कैसा है कि अभी तो नहीं, अभी आप भूल जाओ ड्रग्स के नेम. सबसे पहले अभी कोई अब जाओगे ना, अभी भी ड्रग्स का नाम करना, तो अब 6 महीने बाद भूल जाओगे. सबसे पहले तो सारे कॉन्सेप्ट जो है, कंसेप्ट पूरे समझ लो फार्मेक के. अब उसके बाद 2 महीने बाद यहाँ से आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट क्या करना है. डेली एक जो क्लासिफिकेशन होता है एक्चुअली ड्रग्स के, और उसमें नेम्स होते हैं, तो एक एक क्लासिफिकेशन आप डेली करो. लाइक आज आप कोई ड्रग का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जैसे डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आपने आज किया है. अब कल उसे डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन के अलावा कोई दूसरा क्लासिफिकेशन करो, बट बिना देखे डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी करो जो आपने फर्स्ट डे किया. ऐसे ही थर्ड डे फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज करो एंड थर्ड न्यू वाला करो. ऐसे ही फोर्थ डे करना है.
एंड 5th डे आपको कुछ भी नया नहीं करना है, वही 4 क्लासिफिकेशंस को आपको फिर से करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको लाइफ टाइम के लिए वो ड्रग्स याद हो जाएंगे। और ये जो ट्रिक है इट इज़ नॉट ओनली फॉर ड्रग्स, पर जो भी डिफ़िकल्ट टर्म्स और ऐसे बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में फॉर इन योर स्टडीज़, ऐसे ही करना है, रिवाइज करो सो दैट वो साइकिल होती है एक मेमोरी में, वो अच्छे से वो याद हो जाता है। तो दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वी विल like to answer each and every question of yours. Thank you for watching this video. We will definitely make a part 2 of this video if you have another questions for it. And जो DigiNerve app है उसे आप चेक आउट करना मत भूलिए। And thank you for watching.